Friends, hearty welcome to today's speaker, Shri Ravidev Gupta ji, and to all of you to this first of the two talks by Shri Gupta ji concerning concerning the history of Ayodhya, the invincible Ayodhya, which will be followed by a second talk on Ramayana, the epitome of Sanatan Dharma, and that will be held on March 16. And we hope you all will be joined for that event, that particular presentation also on Ramayana as the epitome of Sanatan Dharma. As we all know, the Rama Mandir at Ayodhya is more than just a religious structure. It symbolizes India's cultural and civilizational heritage. It is viewed as a unifying symbol that transcends religious boundaries and fosters a sense of national identity and pride. So today's lecture will be about the sacred city of Ayodhya, the birthplace of Lord Rama, from the days of the destruction of the original Ram Mandir by the Mughal Emperor Babur and the construction of Babri Masjid, that was during the 16th century, to date, including the construction of the new Ram Mandir and Prana Pratishtha of Lord Rama's idol by Honorable Prime Minister Narendra Modi. That was done in January 2024, this year, last month. So during the past over 5 centuries, Ayodhya has seen many armed and communal conflicts. Recent ones in your memory must be the one 1992 demolition of Babri Masjid, the widespread communal riots that followed then across India, and then the Godhra train burning and Gujarat riots of 2022, which are all still fresh in our memory, and unfortunate as they were. So Lord, maybe not the demolition of Babri Masjid. So Lord Rama's life, I mean, we all know, I don't have to say much. The epic of Ramayana holds immense significance to India spiritually. Why Ramayana is important? It is of significance to India spiritually, culturally, religion-wise, socially, and even politically. So Lord Rama's life as a human, they said Rama, the God spirit took life as a human, and the many characters and incidents from Ramayana indeed serve as a moral and ethical touchstones of Indian society. Ramayana has shaped the Indian society's collective consciousness and ethos. Shri Ravidev Gupta ji, in his March 16 presentation, will outline the significance of Ramayana as the foundational text for the Sanatan Dharma and its facets, including the Hindu way of life. Those of you who attended the earlier 2 lectures by Shri Ravidev Gupta ji on Sanatan Dharma and universal consciousness, you already know him. His deep understanding of Vedic, Sanatan, and Hindu philosophies, scriptures, religious literature, and practices. See, Gupta ji has been the chairman of Ekal Vidyalaya Foundation of India for years, through which he works on various activities promoting the welfare of tribal and rural population of India. As a chairman of Hindu Punarutthan Sangha in Delhi, Shri Guptaji's work focuses on making Bharat a self-reliant Rashtra governed by its Sanatana traditions. Shri Guptaji is also a president of Dakshin Delhi Veda Prachar Mandal. It's a federation of 50 Arya Samaj units in South Delhi, which is engaged in the propagation of Vedic philosophies. We do plan to organize his presentation on Arya Samaj, its philosophy, its reform of modern Hinduism. So we'll announce that very shortly. So he is the president of this Dakshin Delhi Veda Prachar Mandal. It's an Arya Samaj organization which is engaged in the propagation of Vedic philosophies. He also works as a general secretary of Delhi-based Veda Samsthan, a research institute in Vedas. Again, that is a huge subject. Maybe we should arrange 4 lectures on the 4 Vedas by Dr. Gupta. As an Arya missionary, Sri Gupta ji writes articles for reputed journals and delivers lectures to propagate Sanatan Vedic philosophy and values at various platforms in Bharat and abroad. Gupta ji is also Kathaka on Vedic scriptures and epic such as Ramayana and Mahabharata. And that's what is so important for us, and that's why he comes with this enormous knowledge of these scriptures, which and this is the origin of all his work
today and March 16 and many other forums. Professionally, Shri Gupta is a cost and management consultant and chairman of Viput Group of companies that provides technologies and materials to the construction industry. Gupta ji, the floor is yours. Thank you so much. Go ahead. Okay, thank you, Ramesh ji. I am so grateful to you for having given me another opportunity to be in the august company of people who seem to be very intellectual and I think much elevated people. And it is always a pleasure to share your views with such a group. I greet my friend Dr. Anil Bhate, who has been instrumental in bringing us together. At the same time, I greet everybody whosoever has participated in this group. Though we are a small group of people, but I think quality and quantity always have a inverse relation. If quantity is there, the quality becomes the casualty. But since we are in a very limited group here, I think the quality has to remain supreme. I greet you all again. I am feeling a bit small only because my introduction has been too large. I am an humble devotee of Sanatan culture and at the same time a disciple of Maharishi Swami Dev Dayanand. So combined together, what I would wish to convey to all my friends that what is Sanatan? Sanatan is an aboriginal shape of Dharma. And Dharma is in any case Sanatan only. Rest are only religions, or should say Panth और डिफरेंट मत और मतांतर। आज हम जिस विषय को लेके आप लोगों के बीच में आए हैं, ये विषय जितना आनंद का है उतना ही गंभीर भी है। गंभीर इसलिए है कि भारतवर्ष का पिछला जो इतिहास रहा है लगभग 1000 वर्ष का, वो बहुत भयानक रहा है। जब उसकी स्मृति को देखते हैं तो मन में बड़ा कष्ट होता है। और 600-700 वर्ष तक तो मुगलों के आक्रांताओं के हम लोग अत्याचार से पीड़ित रहे। स्थिति ये हो गई कि सारे देश की डेमोग्राफी बदल गई। जो इस देश का संपूर्ण हिंदू समाज था, उसी के अंदर में विधर्मी समाज पैदा हो गया। वैसा समाज जिसकी जड़ें भारत में नहीं थी, जिनको हम अब्राहमिक रिलीजन्स कह सकते हैं। वो इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, यहूदी भी होता है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हुआ, इसलिए उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इतना हुआ कि जो एक शुद्ध सनातन भारतीय संस्कृति का ये देश था, उसमें इतनी भयंकर मिलावट आ गई कि हमको ये भी पता लगना मुश्किल हो गया कि कौन यहाँ का मूल निवासी है और कौन यहाँ का कन्वर्टेड है। और जब कोई कन्वर्ट होता है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का या समाज की संस्कृति का होता है कि आपका खाली एक मित्र नहीं घटता, बल्कि एक शत्रु आपका बढ़ जाता है। तो अगर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करे तो इसका बहुत ही क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो बड़ा भयानक होता है। हमारी संख्या घटती है, शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। हमारी जो देश की स्वतंत्रता 1947 में हमको मिली राजनीतिक दृष्टि से, अगर देखा जाए तो वो लगभग 100 वर्ष के संघर्ष का इतिहास है। 1857 को हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो लगभग 100 वर्षों के संघर्ष के बाद तो देश में राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आज हम जिस अयोध्या की और राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, इसका संघर्ष 500 वर्ष पुराना है। और ये जो 500 वर्ष पुराना है, आज का जो हमारा टाइटल है आपने देखा होगा, अयोध्या द इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी सबड्यूड, जिसको कोई हरा नहीं सकता। और संस्कृत में अयोध्या का अर्थ ही है, ए का अर्थ है नहीं और योद्धा का अर्थ है जिसको कोई युद्ध नहीं कर सकता। और ये जो शब्द है अयोध्या, ये वेदों में आता है, अथर्ववेद में। देखिए किस प्रकार से आता है, ये सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा।
अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पूर अयोध्या। 8 चक्र वाली और 9 द्वार वाली ये जो पुरी है, ये देवों की पुरी है और ये अयोध्या है। आप जरा सा इसका ठीक ढंग से अगर विश्लेषण करें तो ये आपके और मेरे शरीर की चर्चा है। हम लोगों का, मनुष्य जाति का जो शरीर है, आपका और मेरा शरीर, इसमें 8 चक्र हैं, ये हम सब जानते हैं। जो लोग योग से जुड़े हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अष्ट चक्रा 9 द्वारा, इसमें 9 द्वार हैं। 7 द्वार तो हमारे इस पर ही है, मुखमंडल पर ही, जिनको हम सप्तऋषि कहते हैं। 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नासिका के 2 वो हैं, छिद्र हैं, और हमारी वाणी के लिए मुख है। तो 7 तो ये हो गए, 2 हमारे विसर्जन संस्थान है। तो 9 द्वार की, 8 चक्रों की, ये जो देवों की पुरी है। देवों की पुरी इसलिए कहा गया कि प्रकृति के पंचभूत तत्व से हमारा शरीर बना है, और ये पांचों के पांचों जड़ देवता हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये सारे के सारे हमारे शरीर में स्थित हैं। क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये शास्त्रों का वाक्य है कि जैसा मेरा ये शरीर का पिंड है, 5 भूत तत्व से बना हुआ, सारा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो देखा जाए तो हम लोग मनुष्य जाति, क्योंकि हम सबसे उत्तम योनि है और एकदम परफेक्ट ईश्वर के क्रिएशन है, तो हमारा ये शरीर बिल्कुल ऐसा है जैसे एक मोबाइल रेप्लिका है इस पृथ्वी का, सृष्टि का। और इसी के अंदर में जो ये 5 देव है, इसी के लिए इसको लिखा गया वेदों में कि ये अयोध्या है। इसको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो जब हमने इसको अयोध्या कहा तो सबसे पहला तो बात एक में बड़ा भ्रम पैदा होता है कि ये जो हमारी अयोध्या जिसकी हम बात कह रहे हैं, जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, तो कोई भी हम में से कह सकता है कि वेदों में तो इस अयोध्या की चर्चा है। बंधुओं, वेद तो उस काल में लिखे गए हैं जब इक्ष्वाकु वंश उत्पन्न भी नहीं हुआ था। क्योंकि त्रेता युग से पहले सतयुग था, उससे भी आरंभ में ये वेदों का रचना हुई ईश्वर की कृपा से, ऋषियों के माध्यम से। तो जिस समय तक कोई घटनाएं ही सृष्टि में नहीं घटित थी, तो फिर उसमें इतिहास कहाँ से हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमको ये स्पष्ट इस बात को समझना होगा कि वेदों में किसी प्रकार का इतिहास नहीं है। हाँ, वेदों में जितनी चर्चा है और जितने उसके अंदर में नाम ऐसे हैं जो व्यक्तिवाचक, जिनको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं, वो सब प्रॉपर नाउन इसलिए हैं कि बाद में मनुष्य जाति ने उन्हीं उसी में से सुंदर सुंदर शब्द और उनके अर्थ समझ के नदियों के, पहाड़ों के, नगरों के ये नाम रखने आरंभ किए। आज तो स्थिति यह है कि मानव जाति में, और विशेष करके जो हमारा आज का मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज, हमारा जो नई पीढ़ी के माता पिता हैं, वो वेदों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन अपनी संतान के नाम बड़े सुंदर शब्द वेदों में से ही ढूंढ ढूंढ के अपने बच्चों के नाम रखते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन उसका नाम का अर्थ पूरी तरह समझ के रखें। तो सबसे पहला तो हमको एक बात ये क्लियर होती है कि जब इक्ष्वाकु वंश का इतना चक्रवर्ती राज्य था, तो वहां के राजाओं ने अपनी राजधानी को, उस नगरी का नाम अयोध्या रखना पसंद किया होगा, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं। वो ये चाहते ही होंगे कि हमारी नगरी, राजधानी ऐसी हो जिसको युद्ध में कोई जीत ना सके। तो इसलिए आज का हमारा टाइटल है अयोध्या द इनविंसिबल। अब प्रश्न ये है कि इसकी इनविंसिबिलिटी है, इसको हमको एस्टेब्लिश करना है। तो एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या करना होगा? 500 साल के इतिहास का देखना होगा। और ये 500 साल का जो बंधुओं इतिहास है, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ये छल कपट और फरेब का इतिहास है। ये छल कपट और फरेब किस प्रकार का है, अगर सुनेंगे हम लोग तो आज हमारे मन में है इतनी बड़ी पीड़ा होगी जितना संभवतः हम लोग नहीं जानते तो हमको नहीं हुई। ये श्री राम की जन्मभूमि है, इसमें तो कोई संदेह का कारण ही नहीं है। हाँ, संदेह का कारण उन लोगों के लिए हो सकता है जो श्री राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। आज हमारे हिंदू समाज में विडंबना है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हम लेफ्टिस्ट कहते हैं, वामपंथी कहते हैं, या हमारे जिनको सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है,
वो तो कई बार ये भी बोलते हैं कि ये राम कोई हुए ही नहीं है, ये काल्पनिक वो है वर्णन। तो जो ऐसे लोग हैं हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और जब काल्पनिक हुए तो जन्म की कोई संभावना ही नहीं है, और जन्म नहीं है तो जन्मभूमि काहे की होगी। तो ऐसे लोगों के लिए कारण क्या है कि हमारे ही जितने भी शास्त्र हैं, इन सबको हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने आके एक शब्द दिया है, माइथोलॉजी। आप में से जितने भी लोग हैं संभवतः इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप अपने स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो बड़े इनोसेंटली बोलते हैं हमारी इंडियन माइथोलॉजी। हम सब इंग्लिश जानते हैं, लेकिन इंग्लिश जानते हैं क्या, इतना नहीं समझने का प्रयास करते कि मिथ किसको कहते हैं। अगर मिथ है तो माइथोलॉजी है, तो क्या हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सारा का सारा इतिहास रामायण है, महाभारत है, भागवत है, अन्य अन्य जितने ग्रंथ हैं, गीता हैं, ये सब माइथोलॉजी हैं। हम पढ़े लिखे लोग बहुत ही अज्ञानता का परिचय देते हैं जब बड़े शान से हम अपने स्क्रिप्चर्स को माइथोलॉजी बड़े शान से कहते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से सारे अपने बंधुओं से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, चिंतन करें इस पर कि हम इतनी लापरवाही हम क्यों बरतते हैं। इंग्लिश जानते हुए भी हम इतने अनजान होके स्वयं एक प्रकार से अपने शास्त्रों को डिस्क्रेडिट करते हैं। और डिस्क्रेडिट का मतलब यही है कि सब काल्पनिक है। तो कोई अगर काल्पनिक बोले, या चेन्नई में हमारे तमिलनाडु के करुणानिधि अगर ये कह दें कि राम तो कोई हुए ही नहीं है और राम से तो कोई बना ही नहीं है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। माइथोलॉजी तो हम बोल रहे हैं। तो पहला प्रश्न तो ये है कि हम इसको माइथोलॉजी कहना बंद करें। अब प्रश्न ये आता है कि जब श्री राम का जन्म हुआ था वहां पर, ये तो इतिहास सक्षम ऐसा है, इसके अंदर में इतिहास का विषय है और आस्था का भी विषय है। और जब कोई आस्था होती है तो फिर उस आस्था के सामने इतिहास की बातें गौण होती हैं। आज सब लोग इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म अरब में हुआ था, और जिस स्थान के अंदर हुआ उसको उन्होंने मक्का और मदीना के नाम से सेक्रेड प्लेसेस माना। उस बिलीफ को सारी दुनिया मानती है। लेकिन जब भारत के लोग ये बोलते हैं कि श्री राम का जन्म हुआ और राम जन्मभूमि वह है जो अयोध्या, और राम जन्मभूमि का अगर स्थल आप करें, जीरो इन करें अगर जीपीएस पे, तो ज्यादा से ज्यादा कितना स्क्वायर होगा, 10 स्क्वायर फुट का अगर स्थान है तो वो भी एक प्रकार से जन्मभूमि का टुकड़ा माना जाए। आपका और मेरा जन्म हुआ होगा तो कितने बड़े स्थान में हुआ होगा, जितने में एक चारपाई आती है उतने में हमारा जन्म हुआ, वही हमारा जन्म स्थल है। दुनिया की सारी भूमि उस जन्म स्थल के सामने कोई कीमत नहीं रखती है। तो सबसे पहला तो हमको जन्मभूमि का महत्व समझना चाहिए। अगर राम को हम अपना आराध्य मानते हैं, जन जन का आराध्य उनको मानते हैं, तो उनकी जन्मभूमि हमारे लिए कितनी पवित्र और कितनी कीमती होनी चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तो प्रश्न ये है कि ये जो जन्मभूमि के ऊपर में एक मंदिर बना हुआ था, ये बात उस समय की है जब तक बाबर इस देश में नहीं आया था। बाबर का काल जो है ये सन 1528 से शुरू होता है। 1528 से और आज तक का हमारा जो इतिहास है, ये निरंतर कितना खूनी संघर्ष का इतिहास है। ये धीरे धीरे एक एक लेयर बाय लेयर, टीयर बाय टीयर आपके सामने थोड़ी देर में आने वाला। तो 1528 में जब ये स्थान था तो वहां पर एक महात्मा श्यामनंद महाराज थे, उनके अधिकार में ये जन्मभूमि क्षेत्र था। अब छल कपट कहाँ से आरंभ हुआ ये देखिए, आपको जब जानकारी होगी तो हमको खुद कुछ सोचने के लिए बाध्य होना होगा। इस्लाम के अंदर एक सूफी संप्रदाय होता है, और ये सूफी संप्रदाय को भी हमारा हिंदू समाज, क्योंकि हम बड़े उदार व्यक्ति हैं, और उदार भी क्या, इतने सीमा तक भोले हैं कि अगर हमको कोई व्यक्ति मूर्ख बनाए तो हमको बनने में कोई बहुत देर नहीं लगती है। और सूफियों को हमने ये माना है कि ये लिबरल इस्लाम का फेस है। और आज जो हमको जन्मभूमि का ये जो छल कपट का इतिहास मिलता है, ये सूफी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया हुआ ही फरेब है, जिसके कारण से हमको ये 500 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। इन महात्मा श्यामनंद की बड़ी कीर्ति थी। तो दो सूफी लोग उनके पास आए जो फकीर थे, एक ख्वाजा अब्बास मूसा था और एक जलाल शाह था। उन्होंने कहा महाराज हम भी आपके शिष्य बनना चाहते हैं। और जैसा हमारा स्वभाव है, मैंने अभी चर्चा किया, हिंदू समाज के अंदर उदारता तो इस सीमा तक है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात हम ही करते हैं। सारी दुनिया को, वसुधा का मतलब पृथ्वी, उसको एक कुटुंब मानते हैं। तो इसलिए हम किसी के अंदर में दोष देखते ही नहीं है, हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। महात्मा श्यामनंदन जी ने भी उन दोनों को अपना शिष्य स्वीकार किया।
कुछ वर्षों तक उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार करके और उन्हीं के जैसे भगवे चोले पहन के हिंदू समाज के बीच में अपने संपर्क करने आरंभ किया। उनको ये समझ में आ गया कुछ ही वर्ष में कि ये जो क्षेत्र है, ये राम जन्मभूमि, ये भगवान राम को लोग इतना पूजते हैं कि ईश्वर का स्थान देते हैं। इसलिए हिंदू समाज के लिए अगर कोई सबसे पवित्र दुनिया के अंदर में जमीन का टुकड़ा हो सकता है तो ये थोड़ा सा राम जन्मभूमि क्षेत्र है। उन्हीं दिनों बाबर आया। बाबर जब दिल्ली के अंदर में अपने आप को किसी तरीके से एस्टेब्लिश कर पाया तो उन दुष्टों ने क्या किया कि उन्होंने बाबर के पास में सूचना भिजवाई कि हिंदू समाज के श्रद्धा का जो सर्वश्रेष्ठ केंद्र है वो अयोध्या में ये राम जन्मभूमि स्थान है। इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। और महाराज आपने, चूंकि बाबर पहले जितने आक्रांता मुस्लिम आए थे उनसे डिफरेंट था। बाकी लोग आए लूट के चले गए। बाबर एक पहला व्यक्ति था मुगल डायनेस्टी का जिसने ये निश्चय करके आया था कि मैं केवल लूट के भागूंगा नहीं, दिल्ली भारत के अंदर में ही मैं यहाँ पर अपने को यहीं पर बसने का निश्चय करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग विरोध ही नहीं करते हैं, हर किसी को स्वीकार करते हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर रहने का निश्चय किया। और इसलिए हम जब बात करते हैं इस्लाम की तो मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं। तो बाबर उनका सबसे पहला व्यक्ति है जिसने यहाँ बसने का निश्चय किया। लेकिन साथ में उसका एक मोटो भी था और जीवन का लक्ष्य था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस देश के अंदर लोगों को मुसलमान बना दूंगा, इस्लाम में कन्वर्ट करूंगा। तो एक तरह का जिहादी भी था वो। इन लोगों ने जैसी उसके पास खबर भेजी, उन्होंने अपने लोगों से सबसे चर्चा की। उन्होंने कहा अरे ये तो इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है और हमारे तो इन्फॉर्मर वहां बैठे हैं। इसलिए यही तरीका है, एक सेना बना के बहुत बड़ी और अयोध्या के अंदर जाओ और उस मंदिर को तोड़ के और वहां पे एक मस्जिद बनाने का प्रयास करो। अब बंधुओं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हम रामायण की चर्चा करते हैं, अभी रमेश जी ने रामायण के बारे में काफी कुछ आपको बताया जो हम अगले व्याख्यान में आपको बताने वाले हैं। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि जब पंचवटी में मारीच ने एक मृग का वेश धारण करके श्री राम को बहुत दूर तक ले गया और वहां पे एक इस तरह की आवाज आई कि हा लक्ष्मण, हा सीते। तो सीता जी को ये आशंका हो गई कि श्री राम जो है वो बहुत भयंकर विपत्ति में हैं। और उन्होंने बहुत जबरदस्ती और बड़े अमर्यादित आचरण करते हुए लक्ष्मण को वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। यही मारीच की योजना भी थी रावण के साथ मिलके। अब आप देखिए इस छोटे से घटनाक्रम में क्या हुआ। लक्ष्मण जैसा एक साधु, एक यति, एक सच्चा साधु जब कुटिया से निकाल दिया गया तो तुरंत एक नकली साधु रावण के रूप में वहां आ गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है जिसको मुझे आज बताने की आवश्यकता नहीं। तो मेरा क्या कहना है, हम लोग भगवा शब्द से परिचित हैं। भगवा किसको कहते हैं हम? जब सुबह है, सूर्य निकलता है और उषा काल होती है, सारे आकाश के अंदर एक लालिमा होती है, उसको हम भगवा रंग बोलते हैं, उषा की लालिमा, केसरिया भी बोलते हैं। और जो व्यक्ति उसको धारण करता है हम उसको सन्यासी कहते हैं। और अगर इतना सिद्ध पुरुष हो जैसे श्री राम है तो हम उनको भगवान की संज्ञा देते हैं। इसका मतलब भगवा वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति हमारे लिए भगवान की श्रेणी में भी आने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर कोई रावण उस भगवे को पहन ले तो वो भगवान नहीं होता, वो राक्षस होता है। बस यही स्थिति थी। महात्मा श्यामानंद भी पहनते थे भगवा और साथ में सूफी फकीरों ने भी भगवा पहना। तो अंतर देख लीजिए, एक भगवान का सेवक था और ये दो राक्षस थे। इन राक्षसों की जैसे ही सूचना वहां बाबर को मिली, उसने तुरंत उनको खबर भेजी कि ठीक है, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जब ये स्थान इतना पवित्र माना जाता है तो हम इसको एक खुर्द मक्का बनाएंगे। खुर्द कहते हैं छोटी। तो वो मक्का अरब में है लेकिन हम एक खुर्द मक्का यहाँ पर अयोध्या में बना देंगे मस्जिद के रूप में। बहुत बड़ी सेना उन्होंने वहां से भेजी। मीर बाकी के उसमें 4-5 लाख सैनिक उन्होंने भेजे। तो जैसे ही इनको ये पता लगा कि सेना वहां से कूच करके आ गई है तो इन दोनों व्यक्तियों ने
महात्मा श्यामानंद की और उनके जितने भी शिष्य थे उनकी सबकी हत्या कर दी, और हत्या करके उस सारे स्थान को अपने कब्जे में ले लिया। और वहां पे कुछ लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करके स्थिति ये कर दी कि वहां पर आस पास में खोद खोद के कब्रिस्तान बनाने शुरू कर दी। भयंकर स्थिति तो आपको समझ में आ गई कि छल कपट से ये कहानी शुरू होती है, और कितने भयंकर छल कपट से, उन लोगों को जिन पे ऊपर हमने विश्वास किया, और विश्वासघात उन्हीं लोगों ने किया जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब ये स्थिति पता लगी कि वहां पर से बहुत बड़ी सेना आ रही है, तो उसी समय वहां के आसपास में एक राजा थे, भीटी जगह कहलाती है, वहां के राजा मेहताब सिंह थे। वो बद्री नारायण की यात्रा के लिए निकले हुए थे, और बहुत बड़ी सेना अपने साथ लेके निकले हुए थे। उनको जैसे ही अयोध्या के निकट से इस बात की सूचना मिली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बद्रीनाथ तो बाद में जाऊंगा, पहले अयोध्या की रक्षा करूंगा। तो वहां पर इतिहास ये बताता है कि लगभग 3 महीने तक उनकी सेना, जो लगभग 2.25 लाख के करीब थी, और मीर बाकी की सेना 4.5-5 लाख की थी, 3 महीने तक उनके साथ घोर युद्ध हुआ। और उस घोर युद्ध की स्थिति ये हो गई कि लगभग ये सारा हिंदू सेना जो है वो सारी की सारी वीर गति को प्राप्त हो गई। और उस समय का जो अंग्रेज, बाद में अंग्रेज जो इतिहासकार हैं जिन्होंने उस समय के इतिहास लिखे हैं, आप लोग अगर चाहें तो इसको बाद में कहीं से भी गूगल या किसी माध्यम से इसको वेरीफाई कीजिएगा। उसमें एक कनिंगम हुए हैं, एक हैमिल्टन हुए हैं। उन्होंने उस समय के गजेटियर में ये लिखा है कि जिस समय मीर बाकी ने उस जगह को कब्जे में ले लिया और तोप से उस मंदिर को तो उड़ा दिया, और जब वह मंदिर बनाने की, वो मस्जिद बनाने की योजना बनाई, तो वो ये लिखता है कि इतने क्रूर और निशंस वो लोग थे, इतने राक्षस अत्याचारी थे कि उन्होंने गारा बनाने के लिए हिंदुओं का रक्त इस्तेमाल किया, जितने लोग वहां मारे गए थे, और लखोरी ईंटें, और उस रक्त रंजित गारे से उस मस्जिद को बनाना शुरू किया। जरा आप देख लीजिए कि ये राम जन्मभूमि पर जिस बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, इसकी बुनियाद में क्या है। तो सबसे पहला तो परिचय मैंने आपको इतिहास के आरंभ का दिया। अब इसके बाद की जो यात्रा है वो इससे भी ज्यादा भयानक है। आसपास में जितने भी लोग रहते थे क्षत्रिय है, वो स्वयं को श्री राम सूर्यवंशी थे, वो भी सूर्यवंशी मानते थे, क्योंकि हजारों साल हो गए श्री राम को हुए। तो जितने भी लोग हैं वो अपने को सूर्यवंशी मानते थे। उनको किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी। आज हम व्यक्तियों के नाम हमारे लिए इतने महत्व के नहीं है, इसलिए सीमित समय में सबके नाम लेने की मैं इच्छा नहीं रखता हूँ। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने उनको प्रेरणा दी, तो लाखों की संख्या में फिर इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो उस बनती हुई मस्जिद के ऊपर में प्रतिकार करने के लिए लगभग 1 सप्ताह तक युद्ध जो चला, उसमें 1 लाख लोगों की और आहुति हो गई। आप देखते जाइए कि कितने दिन युद्ध हुए हैं और कितने लोगों की हत्या हुई है। बाद में मैं आपको टोटल एक बैलेंस शीट भी बताने वाला हूँ। ये सब वीर गति को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद हंसवर्क, वहां पे कोई राज्य था, उसके महाराजा थे रणविजय सिंह। उन्होंने अपनी सेना लेके हमला किया उस मस्जिद को किसी तरह पे रोकने के लिए। वो स्वयं मारे गए। उनकी रानी, रानी जय कुमारी थी, उसके पास में छोटी सी शक्ति थी। उसने शिवाजी की तरह छापामार युद्ध से उस मुगल सेना के साथ में फिर युद्ध आरंभ कर दिया। बहुत से महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, बहुत से सन्यासी उनके साथ जोड़े। और इतिहास ये बताता है कि लगभग 16 बार युद्ध हुआ इन छोटी छोटी सेनाओं का उनके साथ में। और स्थिति ये हो गई कि अंततः मुगलों की सेना कमजोर पड़ी और हिंदू समाज का उसके ऊपर में अधिकार हो गया। ये है बाबर का काल। बाबर के बाद में हुमायूं आ गए। हुमायूं आए तो उसके काल में ये बताया जाता है कि लगभग 20 बार युद्ध हुए। और उन 20 बार युद्ध की स्थिति ये हो गई कि रानी जय कुमारी भी वीरगति को प्राप्त हुई, बहुत सन्यासी भी मारे गए, बहुत सी नारियां मारी गई। और एक स्वामी बलरामाचारी थे, उनके नेतृत्व में हिंदू समाज जितना भी बचा कुचा था वो युद्ध करके उस मस्जिद को बनाने के अंदर में निरंतर अड़चन पैदा करता रहा। तो अनेकों बार हार जीत हुई। अब तक आप ये देखिए कि 37 युद्ध हो चुके हैं और कितने लाख लोग मारे जा चुके हैं। ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है, लेकिन ये समझने का विषय है कि हिंदू समाज ने कितनी बड़ी आहुति इसके लिए दे चुके हैं। स्थिति क्या हुई, कभी हारते थे कभी जीतते थे। तो जन्मभूमि अंततः मुगलों के अधीन हो गई। ये हुमायूं के काल का अंत का समय है।
और उसके बाद में वहाँ आधी अधूरी एक छोटी सी मस्जिद भी किसी रूप में बन गई। अब अकबर आ गए। अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि मुगलों में वो थोड़ा सा एक उदार तरह का राजा था। उसके नवरत्न थे, उसमें बीरबल भी था, टोडरमल भी थे, दो हिंदू भी थे और सात बाकी और भी थे। अकबर ने सारा इतिहास जब समझा और उन लोगों से पूछा, बीरबल से, टोडरमल से, कि आपको क्या लगता है, आप क्या सम्मति देते हो, ये अयोध्या की जो ये अब छोटी सी मस्जिद हमारी बनी हुई है और आज जो है ये हमारे कब्जे में है, पर हिंदू समाज ने आज तक संघर्ष करके इतना भयंकर किया है कि हमारे पहले जितने भी पुरखे रहे यहाँ पे, बाबर और हुमायूं, उनको जमने तो नहीं दिया, क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज, अगर आपको इस देश के अंदर में अपनी हुकूमत को कायम करना है तो हिंदू समाज के साथ इतना विरोध मत पालिए, अयोध्या उनके लिए जान से ज्यादा प्यारी है। अच्छा तो यह है कि आप इसकी तरफ से ध्यान हटाइए और वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना दीजिए, वो मस्जिद तो जो आपकी बनी हुई है उसे बनी रहने दीजिए। तो ये इतिहास बताता है कि उनके सलाह से अकबर ने वहां पर एक छोटा सा चबूतरा बना के उस पर एक मंदिर बना दिया और उसके बाद में अकबर के समय में कोई रक्तपात नहीं हुआ। लगभग यही स्थिति शाहजहां के समय में रही। अब शाहजहां के बाद में औरंगजेब आता है। इसके काल में जो बीच में मैंने आपको बताया कि जितने भी कुछ और युद्ध हुए हैं, 37 के बाद छोटे छोटे युद्ध हुमायूं के काल में जो और होते रहे, और औरंगजेब का जब आया तो औरंगजेब ने तो बहुत भयानक स्थिति पैदा कर दी। वो तो इतना कट्टर सुन्नी मुसलमान था कि वो तो सारे हिंदुस्तान को मुसलमान बनाना ही चाहता था। और किस प्रकार से उसने अंततः जब शिवाजी के साथ में युद्ध छेड़ा, तो इतिहास सबको मालूम है कि वो महाराष्ट्र से वापस जिंदा वापस नहीं आ पाया, क्योंकि शिवाजी ने उसको उसकी औकात दिखा दी। एकमात्र एक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिनको आज हम बड़े श्रद्धा से स्मरण करते हैं, कि जिन्होंने उस औरंगजेब को, इतने क्रूर शासक को, इस प्रकार से स्थिति दी कि वो उनको किसी भी प्रकार से जीते जी ना बंदी कर पाया और ना उनको पराजित कर पाया। और वही शिवाजी महाराज ने जीवन काल में ही औरंगजेब के दिल्ली में रहते रहते हिंदू पद पातशाही की स्थापना की, जिसको हम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में आज भी हम लोग देश के अंदर मनाते हैं बड़े सम्मान के साथ। उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास के एक शिष्य अयोध्या के निकट रहते थे, वैष्णव दास। उन्होंने फिर सूर्यवंश के क्षत्रियों को फिर ललकारा और ललकार करके ठाकुर गजराज सिंह थे, उन्हीं के नेतृत्व में लगभग 30 बार छोटे छोटे और बड़े युद्ध किए औरंगजेब की जितनी भी वहां सेना थी। तो कितने युद्ध हो गए? 67 युद्ध हो गए और कितने असंख्य लोगों ने इस पे बलिदान दिया। इसके बाद में क्या स्थिति हुई कि वहां पर जो सन्यासी समाज था, उसके अंदर जैसे हम लोग बोलते हैं नागा हिंदू, नागा साधु, उनमें कुछ चिमटाधारी साधुओं का संप्रदाय था वहां पे, जो थोड़े मिलिटेंट भी थे। उन्होंने फिर इस प्रकार से कुछ हमला करके इकट्ठा 1640 में ये स्थिति हो गई, जब 68 युद्ध हो चुके, कि 1640 में वो मंदिर और चबूतरा जो है उसकी रक्षा करने में सफलता प्राप्त की। मस्जिद जहां थी वो वहीं बनी रह गई। अब देखिए, थोड़ा सा कालखंड में एक परिवर्तन आता है। 20 साल तक ये स्थिति रही और 1660 में वैष्णव दास ने सिखों के जो 10वें गुरु थे, गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके पास में एक संदेश भेजा कि महाराज, इतने वर्ष हो गए हैं, इतने युद्ध हो गए हैं, लाखों लोगों का बलिदान हो गया, लेकिन मुगलों के अत्याचार समाप्त नहीं हो रहे, हमको समझ नहीं आ रहा कि जन्मभूमि क्षेत्र की रक्षा कैसे करें। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह महाराज को इसकी सूचना मिली, वो तुरंत अपनी सेना लेकर अयोध्या में लाके उन्होंने ब्रह्म कुंड पर डेरा डाल दिया। और ये ब्रह्म कुंड आज भी आप अयोध्या में अगर जाएं, क्योंकि अब अयोध्या तो बहुत कुछ बदल गई है, आज भी वहाँ ब्रह्म कुंड में एक गुरुद्वारा आपको मिलता है, जो उन्हीं की स्मृति में बनाया गया। जब सिखों की सेना वहां पे आ गई और वैष्णव दास के भी जितने भी सैनिक थे, उन दोनों ने मिलकर स्थिति ऐसी पैदा की कि एक बार युद्ध करके औरंगजेब की जो वहां पर सेना थी, उसमें एक सैयद हसन अली था, उसको भी मार दिया और वहां की सारी सेना को भगा दिया। 1660 की ये स्थिति है। फिर इतिहास ये कहता है, अब तक 77 युद्ध हो चुके हैं। 1664 में औरंगजेब ने एक भयंकर आक्रमण और किया, बिल्कुल निर्णायक। उसने ये तय कर लिया कि अब मैं किसी हालत में इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वहां पे उन्होंने हजारों हिंदुओं की फिर हत्या की। और इतिहास ये भी बताता है कि जैसा जलियांवाला कांड में एक कुएं के अंदर को इतनी लाशें से डाली गई कि कुएं को पाट दिया गया,
ये जनरल ओ डायर ने किया था अंग्रेजों के टाइम में। इसी प्रकार का इतिहास औरंगजेब ने उस समय अयोध्या में लिखा कि जितने भी हिंदुओं को वहां पे मारा, उस कुएं में, जिसको करदब कूप कहते थे वहां, उस करदब कूप में उनकी लाश से पाट दिया, और पाटने के बाद में चारों तरफ उसके चार दीवारी बना दी। आज भी अगर जाएं तो गज शहीदा के नाम से वो कुआं मौजूद है। तो इतिहास के जो ये पन्ने हैं, ये हमको बताते हैं कि स्थिति ये हो गई कि उन्होंने सारा चबूतरा, मंदिर, सब जो कुछ खोद डाला, और जो छोटी मोटी वो मस्जिद अधूरी थी उसको थोड़ा पूरा करके एक ढांचा जैसा बना दिया। अब देखिए इतिहास कैसे मोड़ लेता है। जिस तरह के ये संघर्ष से आज तक ये मस्जिद वहां पे बन पाई, और इतने भयानक वहां पे हत्याकांड हुए, इतना रक्त रत्नीज हुआ, तो इतिहास का भी, ये इस्लाम का भी अपना एक कोई असूल है। उन्होंने कहा जो इस तरह की होती है, जो विवादित क्षेत्र होता है, उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, उसको मुकद्दस जगह नहीं कहते, हो पवित्र मस्जिद नहीं मानते। इसलिए औरंगजेब के समय में भी मस्जिद का ढांचा तो बन गया, लेकिन नमाज कभी नहीं पढ़ी गई। ये इतिहास का जो फैक्ट है, ये बंधुओं आप सबको याद रखना होगा, क्योंकि आगे है जो लीगल, जो इसके बाद में बैटल बैटल हुई है, उसके अंदर में इसी प्रकार के तथ्य जो हैं, ये हमारे लिए सपोर्टिव हुए। नमाज नहीं पढ़ी गई तो स्थिति क्या हुई कि उस खुदे स्थान पे ही हिंदू पूजा करते रहे। 1763 में वहां फिर एक बार युद्ध हुआ। 82 युद्ध हो चुके अब तक। नासिरुद्दीन हैदर कोई आए वहां पे मुगलों की तरफ से, उनके टाइम में 3 बार फिर आक्रमण हुए, 85 आक्रमण हो गए। उसमें अमेठी के राजा भी शामिल हुए, भीटी के भी, मकर के भी, जो जो भी पहले लोग लड़ चुके थे, उनके वंशजों ने फिर ही किया, और चिंताधारी साधु भी आ गए। और स्थिति ये हो गई कि 85 युद्ध के बाद हिंदुओं का फिर अधिकार हो गया। फिर एक युद्ध हुआ मुगल सेना का, 86वां युद्ध हुआ, तो फिर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। 87वां युद्ध वाजिद अली शाह के समय में हुआ, फिर हिंदुओं का कब्जा हो गया। और 88 में स्थिति आ गई कि मुसलमानों ने फिर कब्जा कर लिया। उसके बाद में तो भैया स्थिति ये हो गई कि 1857 का काल आ गया और अंग्रेजों का राज आ गया, मुगलों का तो सितारा ही डूब गया। अब प्रश्न क्या रह गया, ये केवल और केवल प्रश्न अंग्रेजों का और हिंदुओं के बीच का रह गया। 1859 में अंग्रेजों ने क्या किया, उसको एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना के, उस मस्जिद को, और जो छोटा मोटा वहां पे एक चबूतरे पे मंदिर भी था, उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना के, क्योंकि अंग्रेजों का एक ये विशेषता रही है, उन्होंने हेरिटेज साइट्स के साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं की। मुगल जितने क्रूर थे, जितने नृशंस थे, जितने जाहिल थे, अंग्रेज उतना ही दूरदर्शी था, समझदार था। जिस तरह से मुगलों ने हठात कि ये हिंदुओं के लिए आदर्श श्रद्धा की भूमि है, इसलिए उसको छोड़ेंगे नहीं, और अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर ये हिंदुओं की श्रद्धा की भूमि है, और हमें हिंदुओं को यहाँ पर राज्य भी करना है और ईसाई भी बनाना है, इनकी गुडविल भी अर्न करनी है, तो मुगलों ने सोचा था कि हम छोड़ेंगे नहीं। अंग्रेजों ने निश्चय किया कि हम छेड़ेंगे नहीं। बंधुओं देखिए राजनीति किस प्रकार से मोड़ लेती है। अंग्रेजों ने उसको छेड़ा नहीं, और उन्होंने क्या किया, 1859 में उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट बना के और उसके अंदर में ताला लगा दिया। अब आप ये देखिए, कुल अब तक का जो टैली है, 88 युद्ध हुए हैं, लगभग 8 लाख लोग मारे जा चुके हैं, और 426 वर्ष लग गए हैं इस सारे कथानक में। और इसके बाद में 72 वर्ष जो हमारे हैं, ये कुल मिला के 72 वर्ष तो ये हमारी स्वतंत्रता के बाद के हैं, और 90 वर्ष अंग्रेजों के टाइम के हैं। इन सारे को जोड़ें तो आज 497 वर्ष बनते हैं, जिसको हम कहते हैं 500 वर्ष का संघर्ष। अब जो दुखद अध्याय है वो बंधुओं इससे भी ज्यादा दुखद है। आज तक तो स्थिति ये थी कि हम मुसलमानों से लड़ते रहे और किसी प्रकार से जन्मभूमि की रक्षा करते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों से भी हमको स्वतंत्रता का प्राप्ति हो गई 1947 में, और आपको ये लगता है कि हमारी अपनी एक सरकार बन गई, उस सरकार ने जितनी दुष्टता का परिचय दिया, इतना दुष्टता का परिचय तो अंग्रेजों ने और मुसलमानों भी नहीं दिया। कैसे, इसको आप देखिए। 1947 के बाद में स्वाभाविक तो यह था कि हिंदुओं की जन्मभूमि क्षेत्र, उस समय की जो स्वतंत्र सरकार थी और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको ये चाहिए था कि वो हिंदुओं को उसका ताला खोल के कहते कि ठीक है ये आपका स्थान है, आप इसको जन्मभूमि में मंदिर के रूप में विकसित कीजिए। नहीं किया। 1949 तक वही स्थिति रही, और हिंदू समाज ने वहां पे 1949 में एक ऐसा चमत्कार हुआ
उसको चमत्कार क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्लान वो थी, वो प्लानिंग। 1949 की दिसंबर 23 को रात में उस ढांचे का ताला टूट गया और वहां पे एक रामलला की मूर्ति जो है वो प्रकट हो गई। सारे अयोध्या में प्रचार हो गया कि रामलला प्रकट हो गए हैं। इसके पीछे जो भी रहा होगा, ये कोई ऐसे चमत्कार नहीं होते हैं। और उसी समय है जब गवर्नमेंट हरकत में आ गई कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने वहां की जो हनुमान गढ़ी है उसके जो महान महंत थे अभिराम दास, मुस्लिम्स को के कहने से और उनको संतुष्ट करने के लिए, जिसको हम अपीजमेंट की पॉलिसी कहते हैं, उन्होंने उन महंत को गिरफ्तार किया और उस मंदिर को खाली करा के उसके अंदर में फिर ताला लगा दिया। यहाँ पे एक बड़ी बात विचारनीय हमको लगती है कि हिंदू समाज ने इसके प्रति किस प्रकार से बलिदान दिए हैं। पहले तो लोगों ने अपनी जान दी है। यहाँ पे स्थिति क्या है, जिस दिन ये स्थिति आई है 1949 में, तो पंडित नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को कहा कि ये तुम्हारे होते हुए यहाँ हो क्या रहा है। पंत ने उस समय के जो डीएम थे और सीएम थे वहां पर, सिटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको कहा कि तुरंत इस मंदिर को वहां से खाली कराइए और खाली करा के इस पर कब्जा करके सरकारी ताला डालिए। उस समय के वो दो व्यक्ति हैं जिनको इतिहास में आज भी स्वर्णाक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, हम ये नहीं करेंगे। और हम तो अगले दिन सुबह खुद जाके उन्होंने वहां पूजा में शामिल हुए और उसका परिणाम क्या हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने हाथ से उस मंदिर के अंदर ताला नहीं लगाया, नौकरी छोड़ना स्वीकार किया। हिंदू समाज के अंदर वीरों की कभी कमी नहीं रही है। रामलला की जो वहां पे मूर्ति थी विराजमान, उसको तो कांग्रेस सरकार ने भी छेड़ा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, रामलला की मूर्ति अंदर है, इसको रहने दो, लेकिन बाहर से ताला लगा दो। और हिंदू समाज जो पूजा करने का अधिकार उनको बाहर से था जैसे चबूतरे पे, ऐसे वो अधिकार करते रहे और रामलला की मूर्ति अंदर रहेगी। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि रामलीला प्रकट भी हो गए और अंदर वो कैद भी हो गए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। प्रशासन का जो इतना दमनकारी कदम था ये, इसके अंदर में आपको एक छोटा सा मुहावरा याद आ सकता है। मुहावरा हमारे हिंदू समाज में चलता है कि मुझे अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। और आगे ये बोलते हैं मेरी किश्ती कहाँ डूबी, जहाँ पानी कम था। ये देख लीजिए, अब आपके सामने जब इतिहास के पन्ने खुलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितना विश्वासघात पहले लोगों ने नहीं किया, उससे ज्यादा विश्वासघात तो आपकी स्वयं की अपनी सरकार ने किया। जिसको हम ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र का मतलब हमारा अपना तंत्र हो गया। क्या लगता है कि हिंदू समाज कभी स्वतंत्र हुआ? उसका अपना कोई तंत्र था क्या शासन में, जो उनके जन्मभूमि की किसी भी प्रकार से आदर करके हिंदू समाज को लौटाने की इच्छा भी रखता हो? नहीं इच्छा रखता था। तो स्थिति क्या हो गई 1950 के अंदर में और 61 में, 11 साल के अंदर हिंदू समाज ने जब ये देख लिया कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, कि अब युद्ध किससे करें, आप पुलिस से युद्ध करने का तो कोई लाभ नहीं, आपकी अपनी पुलिस है, तो लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया। और कांग्रेस सरकार चाहती भी यही थी कि ये मैटर किसी तरह से सब जुडिस हो जाए। और जब एक बार सब जुडिस होता है तो जितना भी पॉलिटिकल हायरार्की होती है उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है। हर किसी को ये कहने का होता है भैया अब ये मामला जो है ये कोर्ट में चला गया, अब तो ये सब जुडिस है, इसके ऊपर में ना तो कोई हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना हम कोई एक्शन ले सकते हैं। तो उनका जो निष्क्रियता है, उनका जो निकम्मापन है, एक तरीके से वो जस्टिफाइड होता है और लीगलाइज हो जाता है। और यही कांग्रेस सरकार ने इस काम को 70 साल तक किया। और ये 70 साल का जो इतिहास है ये हमारे लिए जानने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 1950 से और 61 तक उसमें कितनी ही याचिकाएं दाखिल हो गई और अंततः सुन्नियों के वक्फ बोर्ड ने भी अपनी एक याचिका लगा दी। उनके ऊपर में न्यायालय थे, उनके ऊपर में सोते रहे, उन्होंने कभी उस पर निर्णय करना ही नहीं था, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं थी और न्यायालयों को ये इशारा ही था कि इसको लिंगर ऑन करते रहिए और इस पर कभी डिसीजन नहीं होना है। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म संसद का आयोजन किया। हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद के नाम से परिचित हैं। जब उन्होंने हिंदू धर्म संसद का किया तो उसी समय ये निश्चय किया गया कि माननीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में एक रामशिला की देशव्यापी यात्रा की जाए। जितने बंधु भारतवर्ष के साथ उस समय भी आप में से जुड़े रहे होंगे और जितने भारत से जुड़े हुए आज हमारे इस उसमें सेमिनार में, वेबिनार में, उन सबको ये मालूम है कि लगभग प्रत्येक परिवार को कांटेक्ट किया गया, हिंदू समाज को, और सबने बड़े श्रद्धा से एक 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 इस उससे इच्छा से कि कभी भी मंदिर बनेगा
तो उसमें मेरे भी परिवार की एक ईंट होगी। तो लाखों की, करोड़ों की संख्या में ये राम शिलाएं एकत्रित होकर अयोध्या के अंदर में शामिल हो गई। और किस प्रकार से अशोक सिंघल जी के ऊपर में भी वहां पे पुलिस ने अत्याचार किया, हमला किया, घायल भी हुए, ये सब हमारे को इतिहास की जानकारी स्वयं आपको किसी भी चीज के माध्यम से मिल जाएगी। मैंने आपको संकेत किया। 1986 के अंदर में एक कोर्ट में छोटा सा टर्न आया लीगल। एक कोई उमेश पांडे थे, उन्होंने ताला खोलने की याचिका दायर कर दी। और जिस कोर्ट में गया, वहां कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो भी इसी प्रकार से हिंदू माइंडेड थे। उन्होंने उसका एक ताला खोलने की याचिका उनकी एक्सेप्ट कर ली। और जैसे ही वहां के फैजाबाद का, उस समय अयोध्या नहीं फैजाबाद कहलाता था, वहां के सीएम ने जैसे ही वहां पे कोर्ट से ये हुआ कि ताला खोल दिया जाए, 1 घंटे में उसने ताला खोल दिया। ये खोलते ही फिर सरकार के पेट में दर्द हो गया, इतना हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत सारे मुस्लिम समाज को उकसाया। और परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम समाज अभी तो वक्फ बोर्ड के नाम से लड़ रहा था, अब उन्होंने एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना के स्वयं को कोर्ट के अंदर एक पार्टी बना दिया। और इसके लेके उस मंदिर को फिर ताला लगा दिया गया। 1989 में एक छोटा सा टर्न आया। अभी तक क्या स्थिति है कि हिंदू समाज लड़ता था और उधर से मुस्लिम समाज की बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी लड़ती थी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष थे देवकी नंदन अग्रवाल। ये एक रिटायर्ड जस्टिस थे। उनको लीगल ये सब चीजें मालूम थी, समझते थे। उन्होंने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दी कि जो रामलला की मूर्ति अंदर विराजमान है, ये तो एक फैक्ट है, और ताले में है वो बंद, ये भी एक फैक्ट है। तो रामलला चूंकि अपने आप में एक इनर्ट बॉडी है, तो उनके साथ में उनके गार्जियन के रूप में, एक जैसे कहे ना, कोई अगर जुवेनाइल हो तो उसके गार्जियन को उसकी तरफ से प्लीड करने का एक राइट मिलता है। उन्होंने कोर्ट के अंदर ये पिटीशन कि मैं राम लला विराजमान के सखा के रूप में इस कोर्ट में एक पार्टी बनना चाहता हूँ। कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ये समझ लीजिए बंधु, एक लीगल टर्म में बहुत बड़ी जीत थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक आप रामलला अकेले एक ऐसी एंटिटी लड़ रहे थे जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। एक पाषाण की मूर्ति अंदर थी, वो कैसे लड़ सकती थी? लेकिन अब वो एक्टिवली एक पार्टिसिपेंट हो गई। और पार्टिसिपेंट हो गई तो फिर स्थिति क्या हुई कि उन्हीं दिनों जितने भी हमारे देश में राजनीतिक दल थे, राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी ये विशेषता होती है, गुण कहिए या अवगुण कहिए, जो भी इस तरह का कोई डिबेटेड सब्जेक्टेड होता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, जहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर में कोई साइड नहीं लेते। वो बड़े सेकुलर माइंडेड, और अपना सेकुलर एक्सपोजर रखने के लिए वो सबके लिए ये बात करते हैं कि हाँ भाई ठीक तो है, हम आपके भी साथ हैं, हम आपके भी साथ हैं। मस्जिद वहां बनी हुई है, ये भी फैक्ट है। मंदिर ये रहा होगा, ये भी एक फैक्ट है। संघर्ष हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो होगा। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने चुनाव का मुद्दा बना लिया। और जब एक क्लियर मैनिफेस्टो होता है बंधु, हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 चीजें थी कि हम एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, धारा 370 लागू करेंगे, और राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने जैसे ही ये किया, उन्होंने ये घोषणा की कि न्यायालय को, ये आस्था का प्रश्न है हिंदू समाज का, उनके बिलीफ का प्रश्न है, इसको न्यायालय के अंदर में कोर्ट को कोई डिसाइड करने का अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने इसके बारे में देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। और चुनावी मुद्दा बनने के कारण 1990 में उन्होंने 30 अक्टूबर को एक घोषणा की कि हम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने हेतु एक कार सेवा आरंभ करेंगे। कार सेवा के आरंभ करने की बात की भूमिका के लिए हम सबको मालूम है, श्रीमान लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया। भाजपा के उस समय वो यहाँ पर उप प्रधानमंत्री थे। सोमनाथ से वो यात्रा निकली कि अयोध्या तक जाएगी। केंद्र में जितनी सरकारें थी उन सबको पेट में दर्द था। जिनके उनकी सहयोगी सरकारें राज्यों में थी, उसके अंदर विशेष करके जो बिहार में लालू प्रसाद यादव की थी, उसके साथ में केंद्र सरकार ने एक इस तरह की घोषणा, वो योजना बनाई कि जैसे ही बिहार में समस्तीपुर में वो यात्रा पहुंची, सोमनाथ से समस्तीपुर तक स्थिति ये रही कि जहां जहां से भी वो यात्रा निकली है, मुझको याद है मैं दिल्ली में ही हूँ, उस समय जब दिल्ली से वो यात्रा निकली थी, सारी दिल्ली राममय हो गई थी।
ऐसा लगता था कि दिल्ली के अंदर राम भक्त के अलावा अतिरिक्त कोई रहता ही नहीं है। फूलों से सजी हुई क्या वो रथ यात्रा का स्वागत हुआ, और इस प्रकार का स्वागत लगभग सारे देश में हुआ। समझ में तो केंद्र सरकार को आ गया, लेकिन लालू ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी। समस्तीपुर में जाते ही उसने यात्रा के ऊपर में बैन लगा दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। यात्रा जब रोक दी गई तो इसका बड़ा बैकलैश हुआ, क्योंकि उनको तो चुनावी मुद्दा भाजपा ने बनाया हुआ था। तो राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को न्योता दिया कि आइए आप ऐसा करिए, जो जन्मभूमि है ये तो डिबेटेड है, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, सब जुडिस भी है। इसके पास में एक छोटा सा स्थान हम आपको देते हैं, इस पर आप एक शिलान्यास कर दीजिए, जिसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट आज भी कहती है कि हमने तो शिलान्यास करने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस योजना को विश्व हिंदू परिषद ने नकार दिया। उन्होंने कहा हमको जन्मभूमि बनानी है, अगर मंदिर बनाना है तो उसी स्थान पर बनाएंगे। और आप सबको याद होगा, उस समय सारे समाज के अंदर एक नारा लगता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बड़ी मजाक सी लगती थी कि ये सब लोग बोल तो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बोला गया है तो इसलिए ये नारा लगा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि ये बात कभी सफल होने वाली है। तो वो मजाक सी जो बात लगती थी वो कब सफल हुई है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने उसको नकार दिया। तो स्थिति क्या हुई, 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा का फिर आह्वान किया गया। जब कार सेवा का आह्वान किया गया तो उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि अयोध्या के अंदर कार सेवा करेंगे आप, मैं तो ऐसी स्थिति कर दूंगा, वहां कंटोनमेंट बना दूंगा कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस भयंकर परिस्थिति में इतिहास साक्षी है कि इतनी नाकेबंदी के बावजूद हजारों कार सेवक अयोध्या में मालूम नहीं कहां से इकट्ठे हुए। क्योंकि जो हमारे रास्ते, जो घोषित रास्ते हैं, उनके बजाय वो सब गांव गांव होके, मुझे भी मालूम है बहुत से मेरे साथी उस समय वहां कार सेवक के रूप में वहां चले गए थे। मुलायम सिंह ने जो किया वो मुगलों ने भी नहीं किया। उस व्यक्ति ने पुलिस से कार सेवकों पे गोली चलवा दी डायरेक्ट। हजारों कार सेवक मारे गए। और उस समय के वीडियोस भी मौजूद हैं, स्टिल फोटोग्राफ भी मौजूद है, लेकिन देखने वाले चाहिए। उन लोगों ने, पुलिस को ये कहा गया कि क्योंकि किसी भी तरह का हमको यहाँ पर इसका कोई एविडेंस नहीं छोड़ना है, तो क्या करना है बंधुओं, डेड बॉडीज के साथ में रेत के बोरे बांध के सरयू में फेंक दिया गया। और सारी सरयू ऐसी हो गई कि जैसे उसके अंदर खून बह रहा हो। क्या आप सोच सकते हैं कि स्वतंत्र देश के अंदर हमारे अपने लोगों की सरकार, जिनको हम कहते हैं स्वराज, स्वतंत्रता, मेरा अपना तंत्र, मेरा अपना राज, तो क्या ऐसे लोगों को आप स्वयं अपना अपना व्यक्ति मानेंगे? उन्होंने निशान मिटा दिया। परिणाम क्या हुआ, यूपी के अंदर एक भयंकर असंतोष हुआ। चुनाव थोड़े दिनों में घोषित हो गए और वो स्थिति हुई तो मुलायम सिंह उस चुनाव के अंदर हार गए और भाजपा ने जीत के कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। ये 1991 की बात है। 1528 से 1991 तक बंधुओं हम आ चुके हैं इस इतिहास की यात्रा करते हुए। कल्याण सिंह को जब मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बुद्धिमानी का काम किया। उन्होंने जितना वो हिस्सा डिबेटेड था, और वो डिबेटेड के साथ में कंट्रोवर्शियल था, उन्होंने उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्वायर कर लिया। वो 3.25 एकड़ की जगह है। उन्होंने कहा अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर में तो कोई लीगल बाधा नहीं थी, गवर्नमेंट कभी भी इसको एक्वायर कर सकती है। क्या करना है डिस्पोजल ये कोर्ट के डिसीजन के बाद होगा। उन्होंने उसको किया और उसके आसपास का 42 एकड़ जमीन और उन्होंने एक्वायर कर ली। और उसी समय उन्होंने ये कहा विश्व हिंदू परिषद को कि आप एक राम जन्मभूमि न्यास बनाइए, ये 42 एकड़ तो मैं तुरंत आपको अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये जो 3.25 एकड़ है जब कोर्ट का डिसीजन हो जाएगा तब आपको दे देंगे। बंधुओं, पैर टिकाने की जगह तो हो गई। 1992 में विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर 1992 का ये दिन आप लोग ध्यान कीजिए, जिसको कभी नरसिम्हा राव ने ये कहा था कि मेरे जीवन का ये सबसे काला दिन है। उस 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने फिर कार सेवकों का एक आह्वान किया कि सारे लोग 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचो, क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर को कोर्ट ने एक डिसीजन भी देना था। और ये अनुमान लग रहा था कि जब वहां पे लाखों लोग पहुंचेंगे, कोर्ट को प्रॉब्ली दे माइट बी एबल टू सी रीजन, और कुछ ना कुछ वो सोच समझ के निर्णय देंगे। लेकिन स्थिति क्या हुई, जब लाखों लोग वहां पर पहुंच गए
और कोर्ट को सुबह डिसीजन का ये रहा कि क्या फैसला आना है। 10:30 बजे अयोध्या में खबर आई कि कोर्ट ने उसको उस दिन जो है उसको केस को पोस्टपोन कर दिया है, डेट लगा दी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को ये इशारे थे कि तुमको कोई डिसीजन लेना नहीं है। लाखों लोग वहां पर हैं। आप क्या समझते हैं कि वो खाली वहां पर कोई गुल्ली डंडा खेलने गए थे? लाखों लोग जिस प्रकार से वहां पर थे और उनको ये पता लगा कि कोर्ट ने इसको इतना लाइटली लिया है, बहुत भयंकर स्थिति हो गई। लेकिन कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने पुलिस को कहा हम यहाँ पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, ये गवर्नमेंट की हमारी ड्यूटी है। और उन्होंने केंद्र सरकार को आश्वासन भी दे दिया कि मैं परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने दूंगा। लेकिन साथ में पुलिस को ये कहा कि स्थिति कोई भी हो, हमको शांति से उसको हैंडल करना है, गोली एक भी नहीं चलनी है। बंधुओं, परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है। वो जो गुलामी का ढांचा था, हमारे अपमान का प्रतीक था, वो 6 लाख लोग जो वहां पे थे, वो ऐसे ही खेलने के लिए नहीं गए थे, खाली हाथ वापिस आने के लिए भी नहीं गए थे। उन्होंने उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने के बाद सुबह से और शाम तक स्थिति ये हो गई, उस एरिया को समतल भी कर दिया। और ये भी मालूम है, उस समय का इतिहास बताता है कि जितनी उस मस्जिद की जो ढांचा था, उसकी ईंटें तोड़ी गई। हर व्यक्ति ने प्रसाद के रूप में उन ईंटों को अपने गांठ में बांध लिया कि घर ले जाऊंगा प्रसाद के रूप में। तो ये समझ लीजिए कि लाखों ईंटें भी वहां से गायब हो गई, एरिया भी समतल हो गया। और जब कल्याण सिंह ने कहा कि हम वहाँ परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे, तो एक टेम्परेरी शेड बना के उसके अंदर रामलीला की मूर्ति जो मस्जिद के अंदर ढांचे में थी, वो खुले में उस शेड के नीचे आ गई। तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन भी पूरी हो गई, हमने परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। साथ में ये भी हो गया कि एक भी व्यक्ति मारा नहीं गया। पुलिस ने जो कुछ करना था इंतजाम वो सब कर दिया। और जैसे ही कल्याण सिंह को ये सब पता लगा कि वहां पे ये मंदिर भी बन गया है, तो ही फेल्ट कि आई एम डन, अब मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन इस काम के लिए था, सार्थक हो गया। उनको मालूम था कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है और वो इस गवर्नमेंट को सस्पेंड करेगी। उसने उससे पहले ही अपना वहां पर इस्तीफा दे दिया। नरसिम्हा राव की सरकार थी, कुछ नहीं कर पाए, इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब बंधुओं, उसके बाद क्या हो गई? अब ढांचा तो समाप्त हो गया। अब आप इसको जरा लीगल एंगल से देखना शुरू कीजिए। 2002 से और 2019 का जो ये स्थिति है, 17 साल की स्थिति, ढांचा वहां पे नहीं है। रामलला टेम्परेरी शेड के अंदर में रह रहे हैं, पूजा वहां पे चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोर्ट को तो कुछ समझ नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? कि सरकार किन लोगों की थी। कोर्ट को निरंतर इस बात का इशारा था। इशारा क्या था? एक मैंडेट था कि इस केस के अंदर में कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो, क्योंकि ये मामला लटकना चाहिए, देखते हैं किसका धैर्य कितना है। और उनको रोज प्रमाण किए थे, खुदाई के ऑर्डर हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसने सारी वहां खुदाई करके, उसमें के मोहम्मद थे, स्वयं मुस्लिम थे, वो आज भी जीवित हैं। और उन्होंने बड़े कोर्ट के सामने इस बात के लिए गवाही दी कि हाँ, वहां पर खुदाई के अंदर जितना कुछ नीचे से निकला है, वो सारा का सारा मंदिर के अवशेष हैं, रेमनेंट्स ऑफ ए टेम्पल। पर कोर्ट को वो फिर भी समझ में नहीं आया, उनको समझ में आना भी नहीं था। 2014 में बहुत बड़ा इस देश के अंदर एक बदलाव हुआ है। मैं बंधुओं आपको राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं, मैं देश की उस राजनीति के टर्न की बात कह रहा हूं जो इस देश के अंदर अवश्यम भावी थी और हुई है। 2014 में क्या हुआ है? वो सरकारें हैं जो किसी भी प्रकार से देखकर भी अनदेखा करती थी, जानबूझ के किसी भी चीज को ना देखने का नाटक करती थी, वो सरकारें हट गई और 2014 में भाजपा की केंद्र में सरकार आ गई। मैं भाजपा की वकालत नहीं कर रहा हूं बंधुओं, मैं आपको यथास्थिति इतिहास की बता रहा हूं जैसी है। 2014 में जब मोदी जी की केंद्र में सरकार आ गई, तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई। इच्छा शक्ति बन गई, जो पॉलिटिकल विल नहीं थी वो पॉलिटिकल विल आ गई। और इस विल का जो इंडिकेशन है वो हमारे कोर्ट्स को मिलता है। आप समझ लीजिए कि कोर्ट जो है कभी अनबायस्ड नहीं होती है। और भारत का तो ये इतिहास रहा है, स्वतंत्र भारत का, कि हमारी कोर्ट यहाँ पर कभी भी जस्टिस की बात आज तक भी कोई विशेष ऐसा नहीं लगा जिसको हम रिजॉयस कर सके। जबकि हमारे न्यायाधीश के पीछे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। लेकिन आपको मालूम है कोर्ट के अंदर सिवाय झूठ के और कुछ होता है क्या? देखते हुए भी देखी आंखों से उनको कुछ समझ नहीं आता है। 70 साल तक स्वतंत्र भारत के अंदर में ये मामला सब जुडिस रहा।
क्या इससे बड़ा कोई अन्याय हिंदू समाज के साथ और हो सकता है? 1919 में जब ये सरकार दोबारा लौट के आ गई, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लिया। उनको ये समझ में आ गया कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट है और 2019 में रिटर्न भी हुई है, और इसके बाद में भी स्थिति क्या होने वाली है उनको कुछ दिखने लगा। तो कोर्ट को दिखाई भी देने लगा जो अब तक नहीं दिख रहा था। उन सारे के सारे जो एविडेंस उनके सामने थे, फिजिकल एविडेंस, जिसको वो आज तक किसी तरीके से एक्सेप्ट करने को और एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं थे, धीरे धीरे उनकी मानसिकता बननी शुरू हुई और उनको वो दिखाई भी देने लगा। इसका मतलब क्या था कि एक जॉर्नलिस्ट आई, सीज एवरीथिंग पेल एवरीवेयर। आज तो वो जॉर्नलिस्ट नहीं रहा उनका। जब जॉर्नलिस्ट नहीं रहा, तो फिर स्थिति क्या हो गई कि स्पष्ट दिखना शुरू हो गया। ये मैं थोड़ा सार्केस्टिक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, लेकिन है तो ये फैक्ट कि कोर्ट को जो पहले नहीं दिखता था वो कैसे दिखना शुरू हो गया। और स्थिति ये हो गई, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक वर्डिक्ट दिया। और वो वर्डिक्ट जो है, जो उस समय के गोगोई थे, जो इसका विरोध करते आ रहे थे निरंतर वर्षों से, सीजेआई थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ही 5 अपने जजेस की बेंच ने पूरी सहमति से, जिसको कहेंगे एकदम टोटल उनकी वो थी, एकदम एक सहमति से उन्होंने ये निर्णय किया, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे, कि हाँ ये वास्तव में राम जन्मभूमि का ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये राम जन्मभूमि ही है। इसलिए है, मस्जिद का यहाँ कोई ढांचा नहीं है। हिंदू समाज को ये अधिकार है कि वो इसके ऊपर में इसका उद्धार करे। सारे देश के अंदर में जो वातावरण बना है, बंधुओं, मुझे बताने की बात नहीं, कैसा उत्साह फैला है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना दिया गया। उससे पहले तो केवल एक राम जन्मभूमि की रक्षा समिति बनाई थी, और अब तो ये तीर्थ क्षेत्र न्यास। और जैसा ये बना और जैसे ही उन्होंने अपील की, आज तक का ये इतिहास है कि ऐसी पहले घटना नहीं हुई है। जितनी कल्पना की थी इस न्यास ने कि हमको दान मिलेगा, हिंदू समाज ने 30 गुना ध्यान उससे उससे ज्यादा दिया है। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, संभवतः आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो देश में रह रहा हो या विदेश में, जिसने उस समय इस राम जन्मभूमि न्यास के आह्वान पे राम मंदिर के लिए अपनी आहुति ना दी हो। हम में से हर एक ने दी है, और इतनी दी है कि इतनी कल्पना नहीं किसी ने की थी। तो स्थिति क्या हो गई है? लोग क्रिश्चियन ये कहते हैं कि हमारी एक वेटिकन है, इस्लाम ये कहता है कि हमारी एक मक्का है। आज हिंदू समाज की भी एक वेटिकन और मक्का है, जो वहां पर राम जन्मभूमि पर एक ऐसे भव्य मंदिर के निर्माण के साथ 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा की बात वहां पे कही गई है। आप और मैं जितने लोग यहाँ पर इसको सुन रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 60 से छोटे होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 60+ होंगे, और मेरे जैसे भी बहुत से लोग होंगे जो Q4 को भी क्रॉस कर गए हैं। क्या आप लोग अपने हृदय पे हाथ रख के इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में ये बन जाएगा? ऐसी कल्पना हम लोगों को नहीं थी। हमको ये लगता था कि हम तो कल्पना और ये स्वप्न देखते देखते इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन हम भाग्यशाली हैं बंधु, हमारे ही जीवन काल में जितना भी हमारा जीवन शेष रह गया हो, उसी के अंदर में हमारे सामने हमारे कल्पना के हमारे स्वप्न साकार हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है, जिसने 70 साल तक तो केवल स्वप्न देखे थे, और अपने सामने उन स्वप्न को अब साकार होते हम देखने के लिए आज भी ईश्वर की कृपा से जीवित भी हैं, स्वस्थ भी हैं। तो स्थिति क्या हो गई है? ये वो जो वहां मंदिर बना है, जितनी वहां राम शिलाएं पड़ी थी, लाखों करोड़ों इंतजार कर रही थी, और उस बीच में विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर एक वर्कशॉप बना के बहुत राजस्थान से और कहाँ कहाँ से पत्थर मंगा मंगा के उसके अंदर में उसके पिलर भी बनाने शुरू कर दिए थे, इस आशा में कि कभी तो जीतेंगे। आज वो सारे के सारे सार्थक हो गए हैं। सार्थक क्या हो गए हैं? जीवित हो गए, अलाइव हो गए, और सारे मंदिर का पार्ट बन के आज एक मंदिर का वो बन गया। इससे क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध क्या होता है बंधुओं? वो केवल एक बात होती है। मैंने सबसे पहले ये कहा कि अयोध्या द इनविंसिबल, आज ये सिद्ध हो गया है। इस अयोध्या के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष के बाद भी कोई इसको किसी भी प्रकार से युद्ध में जीत तो नहीं पाया। छोटी मोटी हार जीत तो चलती रही, लेकिन कभी भी अंततः हिंदू समाज ने उसको छोड़ा नहीं। और आज जो ये स्थिति है, जब आप वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वास्तव में ये अयोध्या है, युद्ध से कोई इसको जीत नहीं पाया है।
अब मैं आपके सामने कुछ दो चार बातों का कंक्लूजन करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आज ये कहा जा रहा है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बंधुओं, मैं ऋषि दयानंद का सैनिक हूँ, वेदों का अनुयायी हूँ। इसलिए मैं ये तो अपने दृष्टिकोण से नहीं मानता कि किसी भी प्रतिमा के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन ये आस्था का विषय है बहुत लोगों का, इसलिए मैं उसके ऊपर में किसी तरह का तर्क या विवाद नहीं करूंगा। लेकिन मैं इसको किस दृष्टि से देखता हूँ, और आपको भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि उस दृष्टि से भी देखना शुरू कीजिए। ये केवल एक मूर्ति के प्राण की प्रतिष्ठा नहीं है, ये तो भारत के समाज के प्राणों की प्रतिष्ठा है। हिंदू समाज के अंदर में जो उसका धर्म था सनातन, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा है। जो धर्म का मर्म था, ये उसकी प्रतिष्ठा है। और जिस दुर्भावना के कारण उस समय के सूफी उन संतों ने रावण के वेश में भगवा पहन के जो हिंदू समाज के साथ धोखा किया था, फरेब किया था, और सारे उसके बाद में जितनी मुगल डायनेस्टी थी, उन्होंने लाखों हिंदुओं का नरसंहार करके भी उस स्थान में एक ठीक से प्रॉपर मस्जिद नहीं बना पाए। तो इससे हमको क्या सिद्ध होता है? एक छोटा सा भवन भी 500 वर्ष तक कोई ऐसी सत्ताएं जो पूरी तरह से पावर में रही हों और एक छोटा सा भवन ना बना पाई हों, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितना भयंकर विरोध उस स्थान पर हिंदू समाज ने किया। लाखों लोग तो चले गए, लेकिन भूमि नहीं गई। तो इसलिए क्या वास्तव में अयोध्या नहीं है? इसको कहिए तो जितनी दुर्भावना से उन्होंने उसको पतित करने का, दूषित करने का प्रयास किया, उससे भी ज्यादा सद्भावना से हिंदू समाज ने उसकी रक्षा करने का प्रयास किया। और अंततः सफल कौन हुआ? आपका और मेरा ये सनातन धर्मी हिंदू समाज। तो इसको क्या कहेंगे हम? ये हिंदुत्व के अस्तित्व की रक्षा है, एक प्रकार से सनातन धर्म की विजय है। और सनातन धर्म की जो विजय होती है, तो वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति की विजय होती है। और भारतीय संस्कृति की विजय में क्या विशेषता है? और जगह पे जहां भी होता है, वहां पर जो पॉलिटिक्स होती है वो धर्म के ऊपर होती है। बल्कि चर्च में ये बता दिया गया इंग्लैंड में कि जो चर्च है वो किसी भी प्रकार से सुप्रीम पावर नहीं मानी जाएगी। अल्टीमेटली कैथोलिक्स इस बात का विरोध करते थे, और बाद में प्रोटेस्टेंट ने इस बात को बहुत जोर से कहा कि जो किसी भी प्रकार से धर्म जो है वो राजनीति के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की संस्कृति ये नहीं है। भारत की संस्कृति क्या है? जब हम एक भगवा ध्वज भी खड़ा करते हैं तो एक डंडे के ऊपर लगाते हैं एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का। क्या आपको मालूम है ये डंडा क्या है? ये पॉलिटिकल, ये राज सत्ता है। और जो उसके ऊपर कपड़े का टुकड़ा क्या है? वो धर्म सत्ता है। तो जब आप राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता पिरोते हैं, तब एक झंडा बनता है, तब एक ध्वजा बनती है, जिस ध्वजा के नाते हम लोग उसका सम्मान करते हैं। अपना तिरंगे झंडे के लिए जान दे देगा सैनिक, लेकिन तिरंगे झंडे को झुकने नहीं देता है। भगवे झंडे को बचाने के लिए हिंदू समाज अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवा ध्वज का अपमान नहीं होने देगा। इसको कहते हैं राज सत्ता के ऊपर में धर्म सत्ता का, जिसका अभी हमारा जब नया पार्लियामेंट भवन बना है, आपको मालूम है एक सेंगोल ला के रखा गया दक्षिण भारत से। वो क्या है? वो यही है कि जो वहां पर बैठा है एक सभापति, पीठाधिपति, जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, उसके ऊपर में भी एक धर्म दंड है, जो सेंगोल को देखता रहे और वो ये जानता रहे कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, और जनता जिस धर्म की है, सनातन धर्म की है, उस सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा पहला राज धर्म है, और राज धर्म को पालन करना ये मेरी राजनीति है। तो बंधुओं, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और इसके लिए बहुत बड़ा जो विषय है, हम लोगों ने पहले इसको लड़ के जीता था, और 70 साल से जब हमारे ही लोगों ने हमको धोखा दिया, तो हमने बड़े धैर्य से न्यायालय की लड़ाई के बाद भी इसके अंदर में विजय प्राप्त की है। धैर्य से की है और प्रेम से की है। तो ये अयोध्या कुछ साधारण नहीं, एक प्रकार से जागरण का प्रतीक है। और एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ और शेयर कर दूं। हमारे जो जैन समाज है, उनके इतिहास को पढ़िए। वो ये कहते हैं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उसमें 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। जो हमारा बौद्ध समाज है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, वो ये कहते हैं कि 16 चातुर्मास, चातुर्मास कहते हैं 4 महीने का स्टे, जो उसको साधु समाज करता है। तो जो बौद्ध के साधु भिक्षु कहीं पर भी वो करते थे, और महात्मा बुद्ध भी करते थे, तो वो कहते हैं कि 16 चातुर्मास अयोध्या में घटित हुए।
सिख समाज वो भी उससे अपना संबंध मानता है। स्वयं गुरु नानक महाराज ने कहीं अपनी एक साखी में लिखा है कि मैं तो राम का वंशज हूँ। इस अयोध्या के साथ में हिंदू समाज की आत्मा जुड़ी है, और उसी का ये परिणाम है कि ये वहां पर एक मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। और राष्ट्र मंदिर को देखने के लिए गत 22 जनवरी के बाद से इतिहास आपको बताता है कि सारा भारत उमड़ा पड़ा है। क्या साउथ, क्या नॉर्थ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट। अगर आप जाके अयोध्या में देखें तो आपको लगता है कि मिनी भारत के दर्शन हमको होते हैं, एक लघु भारत का प्रतीक। और आज दुनिया के वर्ल्ड मैप पे, टूरिस्ट मैप पे एक ऐसा केंद्र बन गया है। कुछ सालों के अंदर में निश्चित रूप से सारी दुनिया के लिए एक ऐसा श्रद्धा का केंद्र बनने वाला है कि आप और मैं गर्व से कहेंगे कि अंततः जीत जो होती है वो सनातन सत्य, सनातन वैदिक धर्म की होती है। बंधुओं, आपको प्रणाम। Gupta ji, this was an amazing presentation. I think I could do justice with the subject. Okay, oh my God, you did enormous. I mean, this is a very, very, very important presentation. You covered right from the beginning the Babur's era, the Mughal and British periods, colonial period, post-independence, Janmabhoomi, Babri Masjid dispute, 80s, 90s, legal dispute, legal battles, and post-verdict developments in recently up to construction of Ram Mandir and Prana Pratishtha. And amazingly, you are told it is not just a construction of temple, it's not a physical thing, it's connected with Hinduism or Hindu societies. Honor, that pride has been restored. So I wonder whether anyone has, if any question, please go ahead and ask your question, unmute yourself, and please ask for yeah. रविदेव evening, जी, sir. रविदेव जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए देखिए चंद्रशेखर जी, मैं तो एक सामान्य विद्यार्थी मानता हूँ अपने को आज भी। This was a very, very, and people don't realize why we have organized this session is that even among our society, people don't realize the importance of what has happened. I mean, this is such a important event, but our society doesn't recognize that. Even my children, my daughter asking, what is this Modi is doing? I had to spend 1 hour, 1 hour to explain to them why is it important. So this was an amazing presentation, and we will circulate it as widely as possible, and I will share this recording to everyone. You please share it with your people. Yes, we will do that. We will do that. नमस्कार सर। अनिल जी को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतने उत्कृष्ट वक्ता को लाया आपने, वाह भाई वाह। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। आपके चरणों पे मेरा प्रणाम। And to share with you, I had written to Ramesh Bhai Sahab earlier that I had a sore throat today. I was not very comfortable while speaking, but I had all the might. I gathered my might just in order to convey what I wish to say. Yeah. Probably I did. बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। I mean, this will be viral. This video will be viral all over the world. I mean, this so is I our request all of you to circulate It is our this to responsibility all your to friends, get this. family, and ask them to listen to it. I mean, Yes. this is such an important message that Dr. Our Ravidev Gupta ji has put together. Before somebody proceeds to the question, I would like to acknowledge the presence of a few friends whom I can नमस्ते read रविदेव here. जी। हाँ, नमस्ते। रविदेव जी नमस्ते। मैं कुछ नाम बोलना चाहता हूँ। मेरे मित्र कृपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, राजेश अग्रवाल हैं, मेरे बेटे हैं, ये पुत्र जैसे। रुक्मणी गुप्ता जी हमारी जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त सौरभ दानी को मैं देख रहा हूँ, और कुछ और भी नाम मैंने पढ़े थे लेकिन वो मेरे सामने नहीं आए हैं। और whosoever has joined, मैं उनकी उपस्थिति को अभिनंदन करता हूँ। अब आप अपना कोई भी प्रश्न पूछिए। नमस्कार जी, मैं नमस्ते, सौरभ बोल रहा हूँ, और मैं एक और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ न्यू जर्सी के आर्य समाज से डॉक्टर राजेंद्र गांधी आज जुड़े हैं। एंड डॉक्टर राजेंद्र गांधी ने 1983 से यहाँ पे आर्य समाज शुरू किया हुआ है न्यू जर्सी में, और अभी रिसेंटली 1 साल पहले
बहुत भव्य यहाँ पे हमारा एक मंदिर बनाया है। अच्छा। तो इन्होंने अपने बेसिकली पूरी जीवन यहाँ पे लगाया है आर्य समाज के प्रचार प्रसार में, और अब मंदिर में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, मतलब श्रम और धनराशि दोनों को मिला के, और आर्य समाज के को यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज डॉक्टर राजेंद्र गांधी भी यहाँ पे जुड़े हैं। Thank you, thank you, thank you. Yeah, we should come there to New Jersey and visit the temple and meet you. हाँ जी, आप किसी भी, आप लोग सब वेलकम है। हर संडे यहाँ पे हवन होता है, तो हर संडे आप हवन में 10:30 से 12 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। कुलकर्णी साहब, आपके कुछ है थॉट्स? डॉक्टर कुलकर्णी? नहीं जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बधाई देता हूँ आपको कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर उद्बोधन आपका था और आयोजकों का विशेषकर आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने कुछ ऐसी चीजें बताई जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसका हमें कुछ चीजों का से हम अभिज्ञ थे, हमें मालूम भी नहीं था। उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आपने इससे जोड़कर हमें जोड़ा। धन्यवाद, आभार। आयोजकों का विशेषकर भाई साहब का चित्र मेरे सामने है, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कृपाल जी। जी जी। इसका इंग्लिश में सबटाइटल वाला होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आपकी हिंदी नहीं समझ में आती है बहुतों को। तो उसके लिए इंग्लिश में अगर आप बना के भेजिए एक्स्ट्रा वीडियो जस्ट पैरेलल, तो बहुत कृपा होगी। I think there is a YouTube feature where you can add subtitles in English. So we will see how it can be done. Yeah, that will be very good. Excellent. I think I have done my part. Now somebody has to do his part. Now you're there. I know. This is our responsibility. Somewhere. Yeah, I understand. Anyway, Gandhi ji, आपसे बोलना चाहिए? You want to speak? No, I just want to thank you for a great presentation. Ravidev Gupta ji really studied the whole history detail. I'm very proud of what he's doing. Yeah. Again, thank you very much for opportunity to speak. I mean, it's not just history, but it is interpretation of history. You know, that is what it is also important. Yeah. The way he conveys this in the context of our Sanatana Dharma, the Hindu society, its values, ethos. So that is very significant. Dr. Thank you, Ramesh. Do you have any thoughts, Dr. Deshmukh? I too thank Rajendra Gandhi ji for your kind words and for acknowledging the efforts, whatever I could do. Yeah. I only feel that I could have done justice with the subject, and probably since you are acknowledging it, so I feel a little elated that my efforts have borne fruits. I thank you again. No, thank you. Dr. Deshmukh, you have something to say? Yeah, I want to really thank Dr. Gupta ji for this wonderful speech. Very inspiring, very informative. I learned a lot, and I really appreciate this occasion to learn about the history and its interpretation and what has happened for the last 500 years. And I'm very happy for what has happened. Thank you so much. Thank you. Dr. Bhate, you have to say something, Dr. Bhate? No, just all of you are welcome and thank you very much. Good to see you. Yeah. So this is, so please do come for the next presentation on Rama, because that is also equally important. People think it is only a story, it's mythology, but you see, it is a foundation of Sanatana. Please, I would like to intercept. Please do not use this word mythology. Yeah, exactly. No, I'm saying people say it is mythology. That's what I was saying. It is not. Yeah. So that message has to go out, very clearly. Yeah. Because it has explained what Sanatana Dharma. I mean, all the characters, all the Rama's life, thoughts, whatever his actions. We call them scriptures. Scriptures. No, scriptures is not an English word. Yeah. Yeah. So scriptures are one which are facts, and mythology is a fiction. Now my wife is saying that the scriptures are for the Christians. Yeah. So
Thank you so much, and thanks to Namaskar. I want to say something. I Sure, think Rajesh ji, we please. should I think we रमेश should जी, राजेश कुछ कहना चाह रहा है। हाँ जी, राजेश जी बोलिए। हाँ राजेश, हाँ बोलिए राजेश। नमस्कार। नमस्कार। वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड स्पीच। मैं बचपन मतलब मेरे बच्चे जब एक तो हुआ था, एक हुआ भी नहीं था, तब से इनकी कृपा मेरे ऊपर रही है। रमेश जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि उनको अपनी बेटी को 1 घंटे समझाना पड़ा कि ये सब कुछ क्या होता है। सौभाग्य से संघ से और बाबूजी से रिलेशनशिप बचपन से मेरे बच्चों ने इनको देखा है, आना जाना रहा है, तो संस्कार रहे। और अभी पिछले दिनों क्या हुआ, जब राम जन्मभूमि का ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला था, then and I discussed this matter in my home. Then I told that there is a speech or pravachan of Ravidev ji. So I asked my daughter, she is doing PhD from Delhi University, this final stage. So she was happy to go. But when I took her to the speech, that's Arya Samaj Mandir, and she listened to the speech, she was just mesmerized. When I asked her, beta, you had to go to somewhere, let us go. कहती नहीं पापा, लेट अस वेट, मैं फिनिश होने के बाद ही जाऊंगी। She was so mesmerized with these facts and figures he presented over there and repeated, and I saw so many things here. Now there is a small question, बाबूजी। जैसे ये जनसंख्या असंतुलन पूरे विश्व में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, और प्रजातंत्र के इस युग में जब हम देखते हैं कि वोट से ही सरकारें बनती हैं, 2024 के लिए हम निश्चित हैं, 29 के भी लगता है निश्चित हैं, पर यदि 34 यानी 2034 2039 की बात करते हैं, तो अगर ये बैलेंस डगमगा जाता है, उसके लिए क्या योजना है संगठनों की? कुछ यदि प्रकाश डालना चाहें तो इसमें। देखिए, प्रश्न आपका जो है ये बड़ा साधारण भी है और बड़ा क्लिष्ट भी है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, एट द सेम टाइम वेरी सिंपल टू। सिंपल इन द सेंस कि जितनी भी सरकारें बनती हैं वो पॉपुलरिज्म के ऊपर बनती हैं। जो पॉपुलिस्ट होगी वो बनेगी। अब क्वेश्चन ये होता है कि वोटर्स क्या चाहते हैं। अगर वोटर्स यूनाइटेड हैं और कंसर्टेड हैं तो कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता है। तो यदि अगर भारत के अंदर में भारत का रहने वाला बहुसंख्यक मूल समाज, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, अगर वो हिंदू समाज अपने हितों के लिए खड़ा हो जाए और पूरी ताकत से एक वोट बैंक बन जाए, तो इस देश के अंदर में बने, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हिंदुओं के विरोध में कोई भी काम कर सके। तो इसलिए बैलेंसिंग नहीं है, ये एक प्रकार का काउंटर बैलेंस। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, Hindus, you are very right, because Hindus remain divided on many of these questions. I mean, even today, you can see the kind of opposition, India sees to this very idea of rebuilding Ram Mandir, and we have just been taken for granted and taken for ride for ages now. And pity is that even after getting independence, we are still mentally slave what the English propounded. So we are meeting on 14th now. No, 16th, no? Whatever, 14th or 16th. I would be ready with the subject. Yeah, 16th March. And you have suggested something as a later lecture regarding our Samaj. I would be ready for it also. Yeah, sure. So we will do it. Now I am at your disposal. You can use me the way you like. No. We are very fortunate. We are very fortunate that we are opportunity to listen to you, to understand you, and these topics are very, very dear to us. I mean, ultimately we are looking for strengthening among ourselves and in the society the idea of spirituality. You see, this is what Sanatana Dharma is talking about. But unfortunately, there is not enough understanding of this universal consciousness, spirituality, need to reach there. So use of yoga or meditation practices to reach to consciousness. I mean, there is so much this message has spread a lot through yoga practices and yoga theory, but still 90%, 95% people are not there in here. So this is a huge task, huge challenge. And as we talked here, how do you reach these messages to younger generation? This is the biggest challenge. I mean, how do you make this younger generation
aware of what is their heritage, how valuable it is, and that is a huge challenge for our society, for everyone. रमेश जी, Yeah, जी, रमेश जी, बोलिए. तो आपने ये सोचा है कि ये वीडियो जो है हाँ, वो भेजना चाहते हैं आप सबको. हाँ. मेरी राय से छोटी सी किताब अगर निकाली जाए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है Yeah. इसमें, किसी को पता भी नहीं इतना इतने युद्ध, इतने लड़ाई, इतने वार हुए या इतने हिस्ट्री जो है, यह किताब के हिसाब से उसका ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा समाज में. तो छोटी बुक अगर हम बनाएंगे गुप्ता जी के सहयोग से, गुप्ता जी के सहयोग से कर दीजिए. I will support you, 100% support. Okay. And I will contribute to doing the first version of publication. We can put it on the website. वो गुप्ता जी का ही राइट है उनके, क्योंकि उनका ही वो लेक्चर है, तो किताब भी उनकी होगी. लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उनको किताब के सहयोग से दुनिया में या लोगों में उनका मैसेज जाए. और ये we can put it on internet also, so that people can easily access it, because Okay. So Gupta ji, we will think about it, how to do this. Please. Okay. I would be awaiting for the recorded version. Also, okay. I will share with everyone. Who request. Please share your emails. Please. And continue to support this Universe of Spirituality group. You already have my email, so no problem. What is that? आपके पास मेरा email है. है मेरे पास है. So please do send your email, spread the message, and what we are discussing are the subjects of very fundamental, relevance, importance to our society. That is what it is we are doing. Sanatana Dharma, you see, and that's why this lecture on Arya Samaj will be very important. That is how to convey this message of Sanatana Dharma in a logical way, underway. And I think Arya Samaj can do a big contribution there. So I think Gupta ji, we have to do one presentation on what Arya Samaj has taught us, how it can be adapted, number one, and how it can be communicated to the whole society. Then you have a big organization, but we can do our little contribution, in whatever manner, worth it. Thank you, everyone. So it's time. Okay. Thank you, Dr. You see, our group works with the help of Dr. Bhate, Vinodji Bhate, Mahesh Patil, and Rajni Joglekar. So there are 3 or 4 people who work together and organize this. So thanks everyone for your help. Without your help, it is not possible. Thank you so much. Thank you so very, very much. Okay. Ramesh ji, Mahesh We ji, meet all again. of you. Thanks a lot. We meet again in March. Thank you. We'll see you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thanks, everyone.